अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक वाइट हाउस से कोकेन का पैकेट बरामद होने पर सिक्योरिटी इदारों की दौड़ें लग गई हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, साबिक सदर बराक ओबामा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੂੰਹ ਬਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਾਦੇ ਤਾਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਾਦੇ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਕੀਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬੋ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬੋ ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬੋ ट्रंप साहब, आप तो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है व्हाइट हाउस से कोकेन बरामद हुई है। आप वैसे ही जो बाइडन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਕੁਕੀਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇਛਰੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੌਲੀਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ये दोनों छुट्टियों पे गए हुए थे, इनका बेटा हंटर और जो बाइडन साहब तो कैंप डेविड में थे, छुट्टियां मना रहे थे जब ये बरामद हुई है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣਾ ਇਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਲੱਭਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੁੱਤ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚਰਚ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਪੁੱਤ ਚਰਚ ਪੀਂਦਾ ਏ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੁੱਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਟੋ ਜਲੇਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੂੜੀਆਂ 'ਚ ਜਲੇਬੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾਧੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖੱਖੜ ਪੂੜਾ ਰੱਖਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਬਾਂ 'ਚ भाई साजिश भी तो हो सकती है उनके खिलाफ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੰਟਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੋ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਟਮਾਟਰ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ ਕੋਕੀਨ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਆਈਸ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਚਰਸ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਪਲਵਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ट्रंप साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, वो कोकेन का पैकेट इनके बेडरूम से कहां बरामद हुआ है? वो तो व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग से निकला है। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ जी जो बाइडन साहब, क्या कहेंगे आप? आई डोंट केयर माई फुट ओहो, कुछ तो बताएं। ये जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें तो सिर्फ उसकी फिक्र लगी हुई है यानी कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मिस्टर फरीद, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई फिक्र नहीं है, हम बिल्कुल इजी हैं, जो बाइडन साहब भी और मैं भी, क्योंकि हमारे इलाके का जो थानेदार है वो भाईजान के शागिर्दों में से है, इनसे पड़ा हुआ, इनके घुटनों को हाथ लगा के जाता है। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ये जितने चाहे हमारे पे नशे डाल लें, ये तो डिसमिस हुआ सदर है। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ गोडियां तो फड़ के बाबा सुट लेना, बाबा है कि माना जाटे। ਪੋਤੇ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਹੱਲੇ ਤੇ ਪੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਇਹ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਟੱਪਣ ਡਿਆ ਆ ਮੋਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਭੰਗ ਘੋਟਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸਲੇ ਉਸਲੇ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ सॉरी कह के फौरन दौड़ गया। और यार वो यार कह दिया मुझे, वो मैं साबिक सदर हूं, मैं व्हाइट हाउस दे के कोई गोलगप्पे वाली रेहड़ी नहीं लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਫੱਕੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਚਾਚੇ ਦੀ। वैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बेटा हंटर टैक्स चोर निकल आया, गैर कानूनी पिस्तौल रखने के जुर्म का उसने एतराफ किया। शकूक और शुबात तो बढ़ रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, सरेआम झूठ, बल्कि सफेद झूठ। सफेद झूठ मेरे मुंह से बुरा तो नहीं लगा? नहीं पुत, बल्कि ज्यादा वाजे होया। फरीद साहब, ये जो बाइडेन साहब को इलेक्शन से हटाने के हरबे हो रहे हैं बस। मगर भाई एक मिनट प्लीज, मेरा एक फिक्रा रह गया, दैट्स ऑल। बड़ा फिकरा बोलिया, दैट्स ऑल। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ 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 ਛਿੱਕ ਛਿੱਕ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਛਿੱਕ ਛਿੱਕ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उम्र का तकाजा है और आप उनकी नकलें उतारते हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਕਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛਟਾਲਾ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? मुबैना ऑडियो लीक हो गई है, उसके अंदर आपने एतराफ किया है कि अहम सरकारी दस्तावेजात आपके पास हैं। ईरान पर हमले की बात आप उसके अंदर कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते आप। ਸਾਰਾ ਝੂਠਿਆ ਫੇਕ ਫੇਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਜੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਫਗਾਨੀ ਫਰਾਗ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ट्रंप तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, इधर से जंग बंद कराया है, ले गया अपना अंग्रेज लोग इधर से, वो तोप छोपे इधर छोड़ गया। अब हम उसी तोप के अंदर मकई लगाता है, मकई। अच्छा, कोकेन का पैकेट बरामद हुआ तो वो असली, आपकी ऑडियो लीक्स हुई वो फेक। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੇ ईरान ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ। और वो जो तुमने एटम बम के हवाले से जौहरी दस्तावेजात बाथरूम में छुपाए थे, वो आओ जरा बताओ बताओ वो। ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋਹਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ? ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਮ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕਾ ਸਾਬਣਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋਹਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਪੁੱਤ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਐ ਸੁਮਰੇ, ਤੂੰ ਆ ਤੁਗੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸ। ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾੜ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी छोड़ें, अपनी बात करें। आप मुद्दे के ऊपर हैं, आप सारी बात उनकी तरफ ले जाते हैं। अपना जवाब देना। आप पर जो फर्द जुर्म लगी है उस पर इल्जाम आयद किया गया है कि आपने अहम सरकारी फाइलें वो आपकी रिहाइशगाह से बरामद हुई हैं, जबकि उनमें से कुछ शावर रूम और बॉल रूम से भी बरामद हुई हैं। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਚ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਰੂਮ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ। ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਚ ਡੌਲਾ ਫੜੋ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸਿਆਸੀ ਡੌਲਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰਵੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ।
Shut up! सॉरी ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਛੇੜਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਲਣ ਚੰਗਾ ਪੱਕਦਾ। ਇਹ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆ ਉੱਥੇ। ये क्या बात हुई? ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਆਣਾ ਅੰਬ। ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਫੂਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਅੰਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਚੂਪ ਲਵੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁੱਕੜ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਆਮ ਖਵਾਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਆ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆ। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बराक ओबामा की अट्रैक्शन ही यही है कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट किया, स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे आए। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਏ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾੜਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। हाँ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚਾਚੇ ਜਬੈਡਨ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਓਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सहाफी सवाल करते थे, उनको धक्के देकर बाहर निकलवा देते थे आप। ਪੁੱਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ $10 ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਰਾ। ਚੂਪ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਕਵੇ ਉਹ ਟਰੰਪੂ ਹੱਲੇ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਬੇਸ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। अभी तक वैसे नजर तो नहीं आ रहा। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ, ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟਰੰਪੂ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਖੋਲ ਆ ਕੇ ਕਸੀਨੋ ਆਪਣੇ, ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ। वैसे माजरत के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्हीं कामों में आप मशहूर हैं। ਆਏ ਲੈ ਬਸ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਪੀ 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 ਪੀ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या बताएं आपको कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा है उन दिनों में जब ये मशहूर था कि ये जाली पायलट हैं जी बहुत ज्यादा। यार तांगा घोड़ा पास से गुजरता था तो घोड़ा बकायदा देख के करता था। पास से गुजरते हुए चिंची वाला बकायदा शरारत करता था। उन चंगे रहे हो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक खबर के मुताबिक पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक कोई फेक पायलट नहीं है। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं PIA के एक पायलट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो वो चूँकि उस वक्त हवा बड़ी गर्म थी हमारे ख़िलाफ़ और ये कहा गया कि जी पायलट जाली भर्ती हो गए और केस हम लोगों पे हो गए। FIR दर्ज हो गई। तो मैं बड़ा बुखलाया हुआ था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों से अच्छी तरह उस वक्त मिला नहीं, बल्कि मैं हैरान हुआ उस वक्त मैं इनको साहब को देख के, ये जो कोने में बैठे हुए हैं, मैंने समझा शायद हस्बे हाल में कोई
रजाई लपेट के रखी हुई है। तो इस दफा मैं आया हूं तो मुझे ये लगा कि ये तो इंसान है। गोगा आप जी ठीक हैं? जनाब। जी जी मैं ठीक हूँ। उस वक्त आप टेंशन में थे। वही ना जी, मैंने समझा कि शायद गौरी अपनी रजाई साथ लेके आता है तो यही सो जाता है। मैं माफी चाहता हूँ। आप ठीक ठाक हैं गौरी साहब? थैला साहब आप ठीक हैं? Yeah, fine, I am quite आप fine. जी आप ठीक हैं? हाँ, ठीक ठाक। फारूक साहब, ये तो आपकी बड़ी कामयाबी है वैसे कि तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है और कहा यही गया है कि जो स्कैंडल है जाली पायलट्स का ठीक नहीं है, कोई फेक पायलट। मैं कहता हूँ जी कि मेरा दिल करता है कि आपके ये गौरी साहब की तरह ये करूं। क्या आपको बताऊं, इतने जलील हुए हैं, इतने शर्मिंदा हुए हैं, इतनी नकाती हुई है हमारे पाकिस्तान की एयरलाइन की भी, हमारी भी और हमारे मुल्क की भी। जी हाँ। ये जो वफाकी मिनिस्टर थे गुलाम सरवर साहब, जी। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। हाय। भाई आपने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करके पूरी दुनिया में हमें जलील करा दिया गुलाम सरवर साहब। बाखुदा हमें लोग ऐसे देखने लग गए थे जैसे हम खोती रेडी चलाते हैं हाय। या जैसे रक्शे ड्राइवर को नहीं बंदा आवाजें देता, इस तरह लोग करना शुरू हो गए। और सर डर के मारे कोई एयरलाइन पे सफर भी नहीं कर रहा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनको भी पता है जिनको जहाज में बैठने भी नहीं देते। तो मेरा मतलब है कि ये गुलाम सरवर साहब की, अब मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, इनकी तहकीकात होनी चाहिए कि इन्होंने क्यों ये किया, क्यों अनाउंस किया, किसने इनको कहा, किसने इनके कान भरे और क्यों इन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करके पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा कराया। अच्छा, कौमी एयरलाइन वैसे ही खसारे के अंदर है और इस स्कैंडल के बाद जब सामने आया तो उसके बाद अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया में पीआईए की फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद हो गई जो आज तक आयद है। ओ बाबूजी आपको क्या बताऊं, हम तो सोचना शुरू हो गए थे कि यार ये जहाज जो है हमारे, ये तो अब इनकी दाल सेवियां ही लेंगे ये लोग। क्योंकि जहाज भी बड़े बड़े पुराने हैं और ऊपर से पायलट भी दागी कर दिए इन्होंने। हर तरफ से जी नौकरियों से छुट्टियां हो गई, लोग बकायदा डरना शुरू हो गए। जो सवारियां थी वो बकायदा वो कॉकपिट में देखना शुरू हो गई को मोरी होवे तो देख लीजिए विच पायलट जाली है कि असली है। या मेरा मतलब है कि जो असली पायलट होता है उसके ऊपर लिखा होता है असली देसी घी का पायलट। या कौन सा असली पायलट होता है? छोटी मक्खी का पायलट असली होता है। जाली पायलट कैसे हो सकता है? ये कुछ सरदर्द की गोली तो नहीं जो जाली है, ये पायलट है। हाँ जी। और इसको अगर भर्ती किया गया है, अगर इसको जहाज में बिठाया गया है, बिल्कुल। तो कौन बेवकूफ ऐसा करेगा कि एक इतना बड़ा जहाज 200-300 सवारियों, 400-500 सवारियों के साथ एक ऐसे बंदे के सुपुर्द कर दे जिसे जहाज उड़ाना नहीं आता। और जो आदमी अगर नकली होता तो वो कैसे अपनी मौत को खुद गले लगाए? ये बात है। मतलब अगर जाली पायलट है या उसके पास उसे उड़ाना ही नहीं आता जहाज और जाली डिग्री है उसकी, तो वो खुद भी क्या मरने के लिए उसमें बैठ गया है? वाह वाह। तो बात ये है अपना फरीद साहब कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि चलो हमारी तहकीकात तो हो गई, हमें तो जो रसवाई मिलनी थी हो गई। क्या बताएं आपको कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा है उन दिनों में जब ये मशहूर था कि ये जाली पायलट हैं जी बहुत ज्यादा। यार तांगा घोड़ा पास से गुजरता था तो घोड़ा बकायदा देख के करता था पास से गुजरते हुए चिंची वाला बकायदा शरारत करता था, उन चंगे रहे हो। यहां तक हो गया कि अपने घर में इज्जत नहीं रही हुजूर। बाकायदा बेगम कहना शुरू हो गई कि रहने दो, आंटी को हाथ न लगाना। पायलट भी नकली थे, खानसामा भी नकली। क्या बताएं आपको, घर में बच्चे कागज वाला जहाज बना के उड़ा रहे थे। वही जहाज मैंने पकड़ के उड़ाना चाहे तो बच्चे ने गुट पकड़ लिया, ना अबू आपकी जाली डिग्री है, आपने नहीं उड़ाना। तो मैं क्या बेटा ये कागज का जहाज है, ये घर में मैं बैठा हूँ उड़ा लेने। तो कहते नहीं नहीं पहले केस का फैसला हो लेने दो। और जी नशई करना शुरू हो गए थे। मैंने एक महल्ले के नशई से कहा, मैं कहा नशा छड़ दे, कहता है तू जहाज छड़ दे। तो यार ये कुछ थोड़ा खौफ फैला है। मैं ये सारे वकूए के दौरान 2 दफा अमेरिका गया हूँ, साइकिल पे गया हूँ। नहीं बहरहाल वकूआ खत्म हो गया, आपको तो अब भी साइकिल पे ही जाना चाहिए। क्या बताएं आपको कि क्या क्या होता रहा है। जिस पायलट पे केस नहीं भी था ना जी,
अगर वो जहाज लेके जा रहा है और कहीं एयर पॉकेट आ गई है तो सवारियों ने कह दिया जाली है, जाली है, ये भी जाली। एयर होस्टेसों ने कस्में उठा उठा के कहा वो नहीं असली परी मार का है, नहीं जाली नहीं। मुसाफिर आके एयरपोर्ट पे सीट पर नहीं थे बहस करते, वो कहते थे भाई जी पहले पायलट दसो असली है कि नकली। पहले पायलट चेक कर देने, जिਵੇਂ खरबूजा नहीं चेक करते सुन के मिठा के जी जी जी, बाकायदा ये बहस होती रही है कि नहीं जी पायलट बहाओ पहले। पायलट तो बाकायदा इंज हो गया सी जिवें छतरा नहीं लैन चाहिए, नहीं भाई जी पहले छतरा बहाओ, नहीं पहले दिखाएं पायलट है कौन सा। पायलट क्या चार्जर बन गया हुआ था, जैसे दुकान पे नहीं कहते जाके चार्जर जरा दिखाओ जी, असली है या नकली है। हाँ जी, बहुत अजीब हालत हो गई यार वैसे इनके साथ ज्यादतियां भी बहुत हुई हैं। देखिए ना, वो जो रिपोर्ट आई थी जो 2020 में उस वक्त के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब देखिए कि पायलट्स के खिलाफ FIRs काट दी गई, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह पूरा इख्तियार है कि वो पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन उस कार्रवाई को बालाताक रखा गया, इनके खिलाफ FIRs दर्ज हुई, स्टूडेंट पायलट से उनको जेल में डाल दिया गया। और साथ साथ ये जो रिपोर्ट आई है तहकीकाती रिपोर्ट, इसमें यह भी इंकिशाफ हुआ है कि पायलट से जबरदस्ती बयानात भी लिए गए थे उस वक्त। जी सीधी सीधी बात है, बाकायदा ये महसूस होता है कि प्लानिंग करके तो बेड़ा गर्क किया गया एयरलाइन का, पहले ही सत्यानाश हुआ था। इन्होंने ऊपर से आके तो दस्यानाश कर दिया। मुसाफिर बाकायदा कंसेशन मांगनी शुरू हो गए थे, भाई जी भावें पायलट असली है असी अद्धे पैसे देंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके कहा यार जाली पायलट वाला जहाज तो बताओ, मैंने अपने ससुराल को दुबई भेजना है। पायलट को तो इतना इजी लेना शुरू हो गए थे लोग। हमारा महल्लेदार एक मुझे कहता है यार तेरा भतीजा वेला फिर दे हाथी सीधा करा दे। मैं क्यों जी भतीजा मेरा टुंडा है। जहाज ऊपर से गुजरता था तो लोग घरों से बाहर निकल आते थे, ईमान से लोग छत पे चारपाई बिछाना छोड़ गए थे। अब देखे ना कि कितना खसारा हुआ है सिर्फ इस फजूल सी हरकत पे और नालायक तरीन वजीर की वजह से। अच्छा जी, एक और चीज आपको बता दूं, खसारे और कर्जों के हवाले से जो PIA जिसमें दबी हुई है, यानी 2003 से अब तक जो PIA के ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो 724 अरब रुपए का है। अच्छा। और रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक ये कर्जों का बोझ PIA के ऊपर 800 अरब रुपए का हो जाएगा। ओह माय गॉड। और इससे भी बढ़ के एक और अहम बात कि ये कर्जे उतारने के लिए PIA को 100 साल चाहिए। देखो ना जरा, अब 100 साल कौन इंतजार करे, 35-40 साल बाद तो जहाज चौक में खड़ा करने वाला हो जाता है। उसके मुतालिक तो बस इतनी बात ही होती है कि भाई जी जहाज से बाएं तरफ हो जाना। मुझे मेरा एक दोस्त कह रहा था यार आपके प्रोग्राम में पायलट आता है, हाँ। तो उसे में एक जहाज ले दो, मैंने रेस्टोरेंट खोलना है। देखिए ना जरा कितनी अजीब बात है, जहां पे पायलट बैठा हुआ है वहां पे चूल्हा लगा हुआ है। बिजनेस क्लास में कढ़ाई के ऑर्डर वाले बैठे हुए हैं, इकोनॉमी में दाल वाले बैठे हुए हैं। हंगामी रास्ते के साथ तंदूर लगा हुआ है। गाहक बेल बजा के कह रहे हैं यार थोड़ा सा शोरबा देना। वेटर ऊंचा ऊंचा कह रहा हो जब तक होटल बंद नहीं होगा कोई ना उठे। खाना मुकम्मल होने तक बेल्टें बांध के रखिए। टेंशन प्लीज, सीटें सीधी कर लें वरना झोली में सालन गिर जाएगा। मुसाफिरों से इल्तमास है जाते हुए अपनी बची हुई रोटियां और सालन साथ लेके जाएं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गिलानी साहब, सर ये पैसा तो सारा आवाम का है, तो कैडी कॉलेज आपने अपने नाम क्यों बनवा लिया है? चले अपने नाम से रहने देते हैं, आपके नाम से शुरू कर देते हैं। सर जी मेरा मतलब है कोई मुल्तान के हवाले से नाम होना चाहिए था। मुल्तान के हवाले से क्या, चौसा कैडेट कॉलेज होना चाहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत? बिल्कुल ठीक गिलानी साहब, मुबारक हो आपको।
हल्का NA 158 के लिए आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर करा लिए, यानी 700 मिलियन की लागत का एक कैडेट कॉलेज और साथ में 1400 मिलियन लागत का एक फ्लाईओवर। तो बहुत मुबारक हो, आपने हल्के के आवाम का किया गया वादा पूरा कर लिया। देखे बात यह है अपना गौरी साहब, जी जनाब, जी सर। कैसे आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ जी सर। आप लोग भी ठीक है? जुल्फी जी ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है फरीद साहब कि हम लोग तो आवाम की खिदमत के जज्बे से भरे पड़े हैं। बेशक। जिस तरह चौसा आम जूस से भरा होता है, आए हाय। मिसाल तो सदके। मिठास से भी भरा होता है। मिठास से तो पूरा मुल्तान भरा हुआ है। वाह। आप देखें कि मुल्तान की जो लैंग्वेज है, जिसे हम सराइकी कहते हैं, वो भी मिठास से भरी हुई है। वाह। हमारी तबीयतें भी अल्लाह के फजल से मिठास से भरी हुई। शाह जी, मैंने तो नहीं कोई देखा कि सराइकी बोलता हो और उसके मुंह से मीठा गिरता हो, कोई पता से गिरते हो कोई। देखें, आप समझते हैं कि मीठा सिर्फ वही है जहाँ पे मक्खियाँ इकट्ठी हुई हुई ऐसा नहीं है। मिठास दिल से महसूस करने की। सदके। वाह। तो मैं समझता हूँ फरीद के जो ये जज्बा है आवाम की खिदमत का, हाँ। ये अल्लाह के फजल से सारी पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है। क्या जबरदस्त। तो ये जो कैडेट कॉलेज मैंने मंजूर करवाया है जी और अब तो अल्लाह के फजल से शुरू होने को जा रहा है, वाह, वाह, वाह। ये एक मेरी पुरानी दरीदा ख्वाहिश थी और वो अल्लाह के फजल से अब आगाज होने वाला है। उसके लिए मैंने 700 मिलियन मंजूर करवा ली है। मुर्शद इतना बड़ा इकदाम इंदे उत्ते डांस ता बन दे। ते कारगिर्द दा कर मैं केड़ा 1 2 3 आखना हुंदा है। सदके वन्या। फरीद, ये जिस तरह ये गिट को झूमर डाल रहा था, इसी तरह सारा मुल्तान झूम रहा है। अच्छा। क्योंकि ये कैडेट कॉलेज जो है ये मुल्तान वालों का एक दरीदा ख्वाब था। लेकिन गिलानी साहब, सर ये पैसा तो सारा आवाम का है, तो कैडेट कॉलेज आपने अपने नाम क्यों बनवा लिया है? चले अपने नाम से रहने देते हैं, आपके नाम से शुरू कर देते हैं। सर जी, मेरा मतलब है कोई मुल्तान के हवाले से नाम होना चाहिए था। मुल्तान के हवाले से क्या चौसा कैडेट कॉलेज होना चाहिए या हाफिज सोनलवा कैडेट कॉलेज होना चाहिए या अनवर रटोल कैडेट कॉलेज लिखते हैं या उसका नाम सिंधड़ी कैडेट कॉलेज रखते हैं? आप बताएं क्या चाहते हैं? अजरक कैडेट कॉलेज रखते हैं उसका नाम। और सर जी, मेरा मतलब है सराइकी कैडेट कॉलेज रख लें, मुल्तान कैडेट कॉलेज रख लें। मुल्तान ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? जी हाँ। अब मेरा मतलब है कि जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। आपको क्या मालूम कि इसके लिए मैंने कितनी भाग दौड़ की है? ये गिटकू से पूछे, दिन रात एक कर दिया। सही फरीद साहब, सरगी वेले शाजी उठ के चले वेंदे हन। सरगी वेले जरा जल्दी आठ तई 8 बजे कर गए। जी 8 to 8 तक यानी कि 12 घंटे इंदी स्ट्रगल च रहन के फ्लाई आवर बनना चाहिए, कॉलेज बढ़ना चाहिए। ते अल्लाह ने कामयाबियां दिते। मेहनत तो आपकी नजर आती है ना कि 2 बड़े मंसूबे आपने मंजूर करवा लिए। शाह जी, फ्लाई ओवर मुल्तान वालों की डिमांड थी। जी हाँ, उसके बहुत जरूरत थी। जी हाँ। और आप देखिए कि जुल्फी को भी ये एहसास है कि फ्लाई ओवर होना चाहिए। हालांकि ये तो उड़ के भी जा सकता है। ये अवाम की सहूलत के लिए फ्लाई ओवर जो है वो ज़रूरी था। बल्कि मैं तो इतनी खिदमत करनी चाहता हूँ मुल्तान वालों की कि मैं चाहता हूँ कि मुल्तान में हर चौक में फ्लाई ओवर हो। गिलानी साहब, इतना सा मुल्तान और हर चौक पे फ्लाईओवर? यह तो अच्छी बात है, छोटा सा मुल्तान, हर चौक में फ्लाई ओवर। जो भी घर आएगा फ्लाई ओवर के ऊपर से घर वालों को कहेगा, कुंडी खोलो मैं आ गया। पुत्र अंदरों कह दे, कुंडी ना खड़का, अब्बा सीधा ही अंदर आ। ये देखे, ये जो सहूलतें हैं ये अल्लाह के फजल से ये हम ही दे सकते हैं। वाह। चूँकि अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी का दौर जब भी आया है,
आवाम की खिदमत सिर्फ हम लोगों ने की है। सदके आप देखें कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, जी हाँ। अल्लाह के फजल से हमने लोगों को नौकरियां भी दी, बल्कि सीटें नहीं भी होती तो हम नौकरी देते हैं। वाह एक एक सीट पे दो दो बंदे भर्ती कर लेते हैं। मगर शाह जी ये तो गलत बात है। ये आपके लिए गलत है, चूंकि आपकी नौकरी लगी हुई है। हाय हाय। जिसके पास नौकरी नहीं है वो तो कहेगा कि मुझे 3G था भर्ती करके दो। शाह जी ने मेरे पुत्र को ही माली भर्ती की थे, हालांकि वो अनपढ़ है। अनपढ़ की तो खैर है, वो गमले से भी छोटा है। लो शाह जी ऐद की आए तो फिर गोगे नु भी नौकरी देनी जी। क्यों नहीं, गोगे को घास खाने वाली मशीन भर्ती किया जा सकता है। शाह जी खाने वाली नहीं, घास काटने वाली मशीन होती है। इसने जब काटना है तो छोड़ना थोड़ा है, खा के जाएगा। इसलिए मैं कभी गलत बंदा भर्ती नहीं करता। एक्सक्यूज मी शाह जी, मैंने एमफिल किया हुआ है। हाँ जी एमफिल इसने किया हुआ है, लेकिन इससे फॉर्म फिल नहीं होता। इससे सिर्फ मैदा फिल होता है। अच्छा शाह जी, ये खबर सुनी थी कि गिलानी हाउस में आग लगने का वाकया पेश आया, ये कैसे आग लग गई? शाह जी किसी ने जादू टूना तो नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है और ना ही हम इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि कोई घर में कोई छोटा मोटा ऐसा हो गया होगा, कोई कमरे में कोई चूहा शूहा घुस गया होगा, तो वो चूहे से आग कैसे लग सकती है? हो सकता है कि चूहा सिगरेट पीता हो। शाह जी ये बताइए कि आपने अपने कारकुनान से कहा है कि इलेक्शंस की तैयारी करें, आइंदा हुकूमत हमारी होगी। जी, मैंने बिल्कुल कहा है कि आइंदा हमारी हुकूमत होगी, और मैं यही कह सकता हूँ हमारी हुकूमत होगी। मेरी हुकूमत मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसका फैसला तो जरदारी साहब करेंगे। क्या और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जैसा दूरंदेश पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। वाह वाह। उनको पता है कि कौन जो है वो वजीर आजम लगता है और कौन नहीं लगता। बल्कि मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि अपने कैमरे वाले से कहे कि ज़रा क्लोज करके तो पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम लोगों को दिखाए। मेरा ख्याल है आपके कैमरे पे टुंडा आदमी बैठा हुआ है। भाई क्लोज करो, क्या कर रहे हो? प्यारे बच्चों, ये है पाकिस्तान का अगला वजीर आजम। सदके ला शेख डगा। एक तो ये गिटकू हर जगह पे नाचना शुरू कर देते। शाह जी ये मोटरवे पे भी नाच लेता है। ये गिटकू है, बंदर नहीं है। गिटकू तू शाह जी ना नच नच के सिर्फ मुंडा भर्ती कराया है। किधरे मेलियां च नचदा तो तू अपना घर बना लेना सी। ओ भाई साहब, घर की क्या जरूरत है? शाह जी दे कदमां च जिंदगी गुजर वंदे भी क्या चाहिए? कदमा को गोली मारे भी तो दस, शाह जी ने मकान भी बनवा के दिते। हाँ दिखते सही दिखते। गिलानी साहब, इसका मतलब है इलेक्शंस की तैयारी शुरू है आपकी? शुरू नहीं फरीद, तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, क्योंकि हम कबल अज वक्त सारा काम कर लेते हैं। हम चूंकि पुराने सियासतदान हैं, हमें मालूम है कि जिस तरह ईद के नज़दीक कसाई नहीं मिलता, इस तरह इलेक्शनों के नज़दीक पेंटर नहीं मिलता। पेंटर का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए हम पहले ही बैनर बनवा के रख लेते हैं। और इस दफा तो हमने पार्टी के तराने भी पहले ही बनवा लिए हैं। अच्छा। शाह जी ऐद की नान में छोटे कीमे वाले होने चाहिए। मुझे ये देख के हैरत हुई है कि खुद तुम बड़े हो मगर सोच तुम्हारी छोटी है। कीमा उसे ही कहते हैं जो छोटा होता है। शाह जी छोटे गोश्त की गल कर रहे हैं। ये तुमने वोट डालने जाना है या नानी के घर जाना है जो खाने की फरमाइशें कर रहे हो?
नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जब भी ऐसा वाकया होता है ये तो इसी तरह चीखते हैं मुसलमान, और हम लोग इसी तरह शोर गोगा करते हैं, बाकायदा एहतजाज करते हैं, बिल्कुल। इल्तिजाएं करते हैं कि ये क्या हो रहा है, हाँ खुदा जी। वास्ते ये ना करो। अच्छा जी, ये जो स्वीडन में ये दिलखराश वाकया पेश आया है कुरान पाक की बेहुरमती का, जी सर। यार हर कुछ अरसे के बाद इस तरह का कोई वाकया होता है, और आप देखो कि वो लोग ये वाकया करते हैं या उन इलाकों में या उन मुल्कों में ये वाकया पेश आता है जो पीस का और अपना मोहब्बत का और इंसानियत का ढंडोरा पीट रहे होते हैं। जी बिल्कुल। बाकायदा आगे आगे लीडर बने होते हैं इंसानियत के हवाले हाँ से। जी। तो भाई आपको 50 दफा ये बात जो है ये बताई जा चुकी है, और आपको इसका एहसास तक भी हो चुका है खुद भी कि ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त वाकयात हैं। जी। बिल्कुल। हम ये अपनी जान माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप से ज्यादा हम इसके लिए हिस्सास हैं। बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने पैगंबर जो हैं उनके लिए, और उनकी किताब कुरान पाक के लिए, खुदा वास्ते आप बाप समझ जाएं कि भाई इनके दिलों को हाथ पड़ जाता है, इनकी जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। तो क्या ये है इंसानियत कि आप किसी को इतना सख्त दुखी कर दें या उसे उस नहज पे ले जाएं कि वो मौत भी भूल जाए अपनी, हाँ जी। वो अपना हर नुकसान भूल जाए? ये क्या है? ये इंसानियत है। और अजीजी, वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपके लिए है, अगर नौजुबिल्ला है आप कहते हैं तो जाहिर है आपके लिए है। तो ये कौन सा इंसानियत का हिस्सा है, या ये कौन सी अक्ल की बात है कि जो आपके इस हरकत से अगर किसी की जान का मसला बन जाता है, जिसकी जिंदगी का मसला बन जाता है। हम तो बार बार ये एहसास इनको दिला चुके हैं कि ये हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज हैं चीजें, बिल्कुल। जी। हमें अपनी जान से ज्यादा हैं ये चीजें। जी। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने कुरान पाक के हवाले से हमने तो अपने बच्चे तक कुर्बान करने का बार बार कहते हैं, बिल्कुल। तो अपने आप को कुर्बान करने का कहते हैं। जी, तो बिल्कुल। फिर अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल। ये जुल्म है। ये जुल्म है, आप इंसानों पे जुल्म कर रहे हैं, उन इंसानों पे जिनके लिए ये इंतहाई मुकद्दस है। और अजीजी, मैं समझता हूँ कि तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं, अब सबको मिल बैठकर कोई एक मरबूत हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात आए रोज जो होते हैं वो ना हो। जी। हाँ जी। जी पढ़े लिखे लोग हैं और काम देखें आखिरी जहालत वाला करते हैं। बिल्कुल। किसी भी मजहब में ऐसा नहीं है कि दूसरे की मजहब की तहजीक की जाए। हाँ यार, ये तो देखो सीधी सीधी बात है ना, इसमें तो कोई अब शक्को शुबा है नहीं, और पूरी दुनिया को ये पता है। जी। जब भी ऐसा वाकया होता है ये तो इसी तरह चीखते हैं मुसलमान, और हम लोग इसी तरह शोर गोगा करते हैं, बाकायदा एहतजाज करते हैं, बिल्कुल। इल्तिजाएं करते हैं कि ये क्या हो रहा है, हाँ खुदा जी। वास्ते ये ना करो। बात ही नहीं आते। बिल्कुल। अब देखो ना कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के अंदर, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अब हमसे गिला ना कीजिएगा, अब हमसे गिला ना जी कीजिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आइंदा कभी ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे गिला ना कीजिएगा। सही बात। और ठीक बात है सही। हाँ जी। यार, कितनी दफा क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या बात हुई? आपको एक बात का पता चल चुका है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। जी। ये तो मुझे याद है कि बहुत पहले, उस वक्त शायद हम छोटे ही थे, वो ऐसा ही वाकया पेश आया था, जी। मुझे याद नहीं है, काफी साल पहले की बात। जी। जी। उस वक्त भी बेइंतहा एहतजाज किया गया और यही बातें की गई कि ये हमारी जिंदगी मौत का मसला होता है, ये हमें अपने जान से ज्यादा अजीज चीजें हैं, खुदा वास्ते ऐसे ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई ऐसा नौजुबिल्ला तज़हीक आमेज़ कुछ हरकत थी, तो उस वक्त भी यही कहा गया था, ये ना करें, ये ना करें। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है अजीजी, बार बार वही काम करते हैं। वही काम करते हैं, और जब तक इन्होंने देखिए, ये जितने भी लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, हाँ जी। दूसरे मज़ाहब के लोग जो हैं,
जितनी देर तक ये कोई कानून ऐसा नहीं बनाते, आप याद रखिएगा, आज कोई अल्लाह माफ करे हमें छेड़ रहा है, कल को कोई इनको भी छेड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। वो हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम तो किसी के मजहब की तज़हीक नहीं चाहते और ना ही इंशाअल्लाह करेंगे, मगर कुछ और कोई ऐसा कर देगा, इनको बाज आना चाहिए, इनको कोई कानून वज़ा करना चाहिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे ये कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि भाई ये ना करे, एक हद है, उस हद को क्रॉस ना करे। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में ना, ये जब से ये वाकया हुआ है मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये, मैं तो कहता हूँ कि 100% ये को मरीज आदमी होता है, ये नफ्सियाती मरीज ही हो सकता है, जो मेरा ख्याल है तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की इंतहाई घटिया और बेहुदा हरकत कर दे। मतलब ऐसी मरीज ही ऐसा कर सकता है ना, जिसको पता भी है कि ये गलत है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे इधर सूखी जमीन है और इधर छप्पड़ है, पानी है, तालाब है, तो कोई बंदा ये सोचे कि मैं इसके ऊपर चलूंगा, भाई ये नहीं चलने वाली जगह। ये जो तुम कर रहे हो पॉपुलर जिस तरह होना चाह रहे हो, ये पॉपुलर होने वाले काम तो नहीं है ना, ये कोई इज्जत वाला काम तो नहीं, ये तो तुम बेइज्जत हो गए हो। मतलब ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने असूल बनाए हुए हैं जी कि आप सिर्फ वीकेंड पे आप आवाज ऊंची निकाल सकते हैं, आप कोई गाना वाना म्यूजिक श्यूजिक टेलीविजन की आवाज सिर्फ वीकेंड पे ऊंचा करें, उसके अलावा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी के दरवाजे के आगे खड़े नहीं हो सकते, किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। यार आप क्या कर रहे हो, आप तो अरबों लोगों को तकलीफ दे रहे हो। मुसलमान अरबों की तादाद में है ना जी, तो आप तो उन सबको तकलीफ दे रहे हो। कहाँ आपका शऊर, आपका जो सोशल एक स्टेटस बनाया हुआ है आप लोगों ने, और आप लोगों ने इंसानियत का जो अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ है कि जी बड़ा यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि देखो जी गोरा कितना एहसास है, कितना ख्याल रखता है, कितना महज़ब है, कितना स्वात है, मिट्टी महज़ब है, जो आखिरी हद तक तकलीफ दे रहा है और करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को तकलीफ दे रहा है, वो कौन सा मौजब है? उनके जज्बात से खेल रहा है। मतलब आप देखें ना, हम अक्सर यहाँ बातें करते हैं जी यूरोपियन, ओ उनका वैसे वो तो इतने, वो तो किसी को तकलीफ बर्दाश्त, वो तो कुत्ते के साथ प्यार, वो तो ये वो तो नहीं क्या क्या हम फजूल बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, सब बेवकूफों वाली बातें। इंतहाई घटिया तरीन हरकत है ये कि आप किसी के दिल को पकड़ लें, किसी के दिल को हाथ डाल लें, क्या कर? जी जी बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि कुरान करीम की बेहुरमती में मुलव्विस जो लोग पाए जाएं उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाए। जी जी, इसी तरह ये रुकेगा ना काम, वरना तो आप लेपा पोती से काम लेके तो गुजार देते हैं दिन, फिर कुछ अरसे के बाद इसी तरह की कोई हरकत हो जाती है। यार क्या कर रहे हो, खुदा के वास्ते ये मत करो, ये मत करो कि बड़ी तकलीफ में है इंसान, बड़ी तकलीफ में है मुसलमान, बहुत तकलीफ में है। बाकायदा अब तो हर मुल्क ने एहतजाज किया है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं सब ने एहतजाज किया और सब ने ये कहा है कि यार इस तरह होछे तरीके से आप हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है, ऐसे ना करें, हर मुसलमान ने कहा। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, किसी को कमजोर और हकीर ना समझो, क्योंकि रास्ते में एक छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।